most evolved, finest actor है. Action, whether it's action, whether it's emotion, comedy, he's been very good at all genres, and he's got something in his eyes which is fantastic. So I'm looking forward. Oh, that's a huge challenge because the audience has seen a version and they liked a version because it's a hit. So to recreate that and not mess it up, I think the biggest challenge of remaking a hit film is don't mess it up. जी? किसी पर्सनालिटी पे आपको बायोपिक बनाना हो सब कौन सी पर्सनालिटी हो बिकॉज़ बायोपिक आर ट्रेंडिंग राइट एनी पर्सनालिटी दैट यू फॉलो यू एडमायर I think कपिल देव के ऊपर there will be I think a very interesting biopic क्योंकि from a man from nowhere becomes very big and then is beaten down and then wins back up again, so that emotional journey is very interesting. सर आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हाँ, अभी बालाजी के लिए आई एम डूइंग अ फिल्म कॉल्ड XXX, so that is in final stages of shooting and post production. We lost a very big legend of this country recently, Mr. Kalam. Do you have any memories? No, I don't have any personal memories of Mr. Kalam, but I was just watching something on NDTV, and he was talking to children, and I was so touched the way he spoke and interacted with children. In fact, I think after independence, the last person who was really connected to children was Jawaharlal Nehru, and after that, there's been Mr. Kalam. So. Whether his bail should be reconsidered, I will not be able to comment on that. I am nobody. I am not educated enough in that department to quote. Okay, thank you. Good evening, everyone. These are lucky mascot of you. So look center, sir. Excited for the flip. Very excited. सर एज अ डायरेक्टर रीमेकिंग अ हिट कितना बड़ा चैलेंज हो गया अरे मत पूछो यार फिर भी सर आप बताइए इतना आसान नहीं होता. जिन्होंने दिए उनसे पूछिए. That's why we're asking you, because you have a good experience. Definitely a difficult job, but then जब हिट हो जाती है तो मज़ा अलग होता है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छी. सर आपने मलयालम में काम किया नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखी. बोथ ऑफ देम. ऑब्वियसली अजय देवगन. सर अगर आपको मौका मिले किसी में बायोपिक बनाने के लिए किसी में बनाएंगे? एनी पर्सनालिटी सर Never thought of it. I make my entertainment films. I like that. Imagine you lost Kalam just recently. Do you have any? I've been seeing television, reading about him. I mean, what a great man he was. I mean, superb. To without president तो थे ही, ex-president था, but otherwise he's been a great source for the young generation. कम समय में बहुत बड़े स्टार बन गए, कितना ग्लैड महसूस करते हैं आप इस बात में? बहुत अच्छा. Thank you very much. चैलेंजिंग बहुत होता है क्योंकि यू डोंट हैव टू मेक द सेम मूवी अगेन एंड अपने तरफ से कैसे बना सके और बेहतर बना सके. और टेंशन भी होता है अगर बाकी सब पिक्चर हिट हो गई तो आपकी भी हिट होनी चाहिए, तो वो टेंशन रहता है. सर आपने दृश्यम की ओरिजिनल वर्जन देखी तामिल एक भी नहीं थी, थैंक गॉड नहीं देखी. तो अभी फ्रेश माइंड से मैं देखूंगा ये पिक्चर और बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हाँ हर लैंग्वेज में हिट है
तो ऑब्वियसली फिंगर क्रॉस लाइक दिस ऑल्सो शुड बी अ फैंटास्टिक। आई एम एक्चुअली टबू फैन, बट अजय देवगन की इंटेंसिटी अच्छी लगती है, तो ये रोल उनको सूट करेगा। सॉरी, अच्छा ये ऐसा है, मेरे को पता नहीं था। आई कांट हियर यू, सॉरी। नहीं, सरबजीत के बाद बायोपिक सोचा नहीं है, ये सरबजीत भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बिकॉज स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मेरा जो वो मैंने ये लिया था कि मैं नहीं करूँगा एक बायोपिक के बाद दूसरी बायोपिक नहीं करूँगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मुझे वो जो मेरा स्टेटमेंट था वापस लेना पड़ा और मुझे सरबजीत करना पड़ा। स्टारकास्ट जैसे सबको ही पता है, सरबजीत में दलबीर कौर का रोल ऐश्वर्या राय कर रही है और सरबजीत का रोल रणदीप हुडा कर रहा है, और आगे का जो मैं धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा, अभी नहीं हुआ था। ये किसने बोला? ये ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन दे आर प्रोफेशनल, दे आर फैंटास्टिक एक्टर एंड एक्ट्रेस, and that's why I wanted them in my film, and hopefully, and I know them from before, so ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। Do you think the judgment on Yaku Menon should be considered as a citizen of this country? That is a question mark for everyone. Everybody is thinking about it. कमेंट करना रॉन्ग पड़ेगा बिकॉज मेरी स्टोरी भी समवॉट इट गोज़ ऑन द सेम लाइंस, तो मैं रोज़ पढ़ता हूँ और मुझे मेरी ही स्टोरी दिख रही है, उसमें सरबजीत की स्टोरी, याकूब मैन की स्टोरी दिख रही है, पर उसमें कमेंट नहीं कर सकता। कबीर खान जो फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान में आवाम को बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो क्या सरबजीत में भी ये चीज़ नजर आएगी कि क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम इतनी अच्छी नहीं है जितना लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखो ह्यूमन साइड हर जगह में सेम होता है। ह्यूमन साइड हम दिखा रहे हैं, बजरंगी भाईजान में भी वैसे ही दिखाया था और मेरी पिक्चर में भी वैसे ही दिखेगा। नहीं, पॉजिटिव साइड है वही दिखाना चाहिए ना, अब नेगेटिव ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव अगर सबको पता है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव है वो दिखाऊंगा। नहीं, देखो मैं मेरी पिक्चर में तो ट्रुथ बताऊंगा ही, तो सबको पता है क्या हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो वो ट्रुथ दिखाऊंगा, और उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकलेगी वो मेरी स्टोरी है। He's such a great guy. He was such a great guy that words don't befit the man himself, and it's a huge loss. I mean, whenever you see him, you get a smile on his face. I'm not interactive with him, but always you look up to him, and that's why he's a real, true hero for us. Thank you. Thank you. Hi. I'm good, thanks. Oh, thank you so much. हाँ, दोनों ही खतरनाक एक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है, और आज तक उनकी फिल्में देख के हम सीख रहे हैं और फिर से कुछ और सीखने आया हूँ मैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वेरी गुड सजेशन, वो भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो किया बहुत टाइम से, वो बहुत लेजेंड है और उन्होंने एक किस लेवल से उठ के कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके ऊपर बायोपिक करने का मौका मिले तो डेफिनेटली अलग होगा। तो ठीक है, जो दोनों ट्राई करते हैं, जिसका बेटर लक होगा। नो, नहीं, अभी तक तो नहीं देखी। हाँ, क्योंकि सारी फिल्में चली हैं और लगभग सुपर हिट रही हैं, एक से एक उनकी तारीफ हुई है, और इसमें तो मचे हुए कलाकार हैं, तब्बू है, अजय देवगन है, सो नथिंग लाइक दैट, मतलब ये तो सुपर हिट होनी है।
नहीं, वो तो फाइनल के कास्ट आप लोगों को पता है, उसमें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दूसरी फिल्में जो मैंने अभी साइन की हैं, एक बार फाइनल जैसे कास्ट हो जाएगी तो उसको अनाउंस कर देंगे। दर्शन, अजय देवगन का कौन सा फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद है, कॉमिक टाइमिंग वाला या ये इंटेंस वाला, ऐसी फिल्मों में? सीरियसली बोलूँ, मैं अभी आते वक्त गाड़ी में ही सोच रहा था कि मुझे उनका क्या पसंद है। देखा जाए वो हर चीज़ में माहिर है। वो जो उन्होंने एक्शन किया तो एक्शन ऐसा किया कि सब देखते रह गए। फर्स्ट शॉट आप लोगों को याद होगा, पहले ही फिल्म में उन्होंने कैसे बाइक के ऊपर किस तरह आए थे। कॉमेडी जब उन्होंने अटैम्प्ट की तो गोलमाल, धमाल, जितनी भी फिल्में उन्होंने की सुपर हिट रही। और जब वो सीरियस करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, इंटेंस करते हैं, तो उनकी आंखें बोलती हैं, तो दैट्स अमेजिंग। मतलब ये ही इज सुपर इन एवरीथिंग। सो वो हमें सीखना है उनसे। दर्शन 10 दिनों में 251 करोड़ का रिटर्न दिया और पाकिस्तान ने अपनी डेट भी फिक्स कर दी 7 अगस्त। तो आपको नहीं लगता कि बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर फिल्म का अपना वो होता है। सलमान भाई की एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनको हर आदमी प्यार करता है। और अजय देवगन की अपनी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है जो उनको डिफरेंट लेवल में देखना चाहता है। और ये फिल्म उनके लिए एक डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट तरह की फिल्म है। और लोग हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं। वो एक पूरी तरह से मसाला फिल्म है, ये एक बहुत ही इंटेंस है। इसमें एक पूरी तरीके से एक बताया गया है कि किस तरह से क्या फाइट की जा सकती है। तो इट्स हर आदमी की चॉइस है, तो दोनों फिल्में देखेगा। इससे मुझे लगता है किसी पे बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। दर्शन, आपसे अगर पूछे तो दृश्यम की अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, कमल हसन स्टारर। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो हिंदी वर्जन है उसमें थोड़ा बिजनेस में थोड़ा कमी शायद मिल सकती है, थोड़ा बिजनेस कम हो सकता है? डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जो इससे पहले भी इसी टॉपिक पे काफ़ी फिल्में आ चुकी हैं, तो वो भी फ्लॉप रिसेंटली हुई थी और अब ये रिलीज। आई थिंक जिन्होंने वो फिल्म भी देखी, क्योंकि वो भी ये देखना चाहेंगे कि वो इतनी अच्छी फिल्म है, तो यहाँ अजय देवगन जो मजे हुए कलाकार हैं और तब्बू है, वो और कितना बेटर करेंगे या किस तरह की करेंगे। तो आदमी ये हर आदमी चाहेगा कि ये फिल्म भी देखें। थैंक यू guys, thank you so much. They're huge fan, and I'm sure this one's going to be one amazing thriller, and I'm so totally looking forward to it. But Prachi, what is the reason that there's a growth of regional cinema in the script that you picked up from regional cinemas and get it into Bollywood? What is the basic reason about this growth? I think these kind of fads keep coming and going. I think Bollywood में हमेशा कोई ना कोई नया trend आता है, and then once it's reaching up to the brink, then it sort of changes. So I guess ये वही एक trend है जो which is really working right now. And I'm sure that in regional cinema they have some wonderful, amazing stories which I think need to be told to a wider audience. So which is why I think one of these kind of films is being made here. Can you also say that Bollywood have adapted a popular saying that? That I really wouldn't know. That I think the box office collections and the producers, I think it's for them to give you the best answer on that. But I guess it's really fared very, very well. जब भी कोई remake बना है या regional cinema से कोई film जिसका remake हुआ है, or maybe sequels. So I just think it's sort of a trend which is really working. मैंने right. That's true. The Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very, very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. And I'll be joining them very, very soon. अगर बात करें तो बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है. Any biopic, any personality that you admire, or you have to star in that biopic, you want to be in that biopic, you want to do a biopic on a celebrity that you admire? I think there'd be so many amazing, personalities on who stories should be told, about who stories should be told, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. अगर सिर्फ इंस्टेंट ही अगर कोई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, I think that would be Gayatri Devi. जी. I think काफ़ी challenging रहेगा because I don't think anybody knows about Noreen so much yet. हम उनके बारे में जानते हैं but उन्हें नहीं जानते हैं. So I think ये सबसे challenging रहेगा क्योंकि for the first time somebody is actually putting a face on her on screen. So I think for her to come in the form of an actor on screen for the first time in front of people, ये सबसे बड़ा challenge होगा. Prachi, this weekend is well, nothing really is coming to mind right now, but not yet. I hope soon. Actually, you know what? That you won't know. Because I cannot talk about that right now. Yeah.
sure, I'd like to wish everybody a very happy Independence Day and have a great day. And yes, exercise your rights and freedom. Thank you. Thank you. It's working for me, so I'm really happy.